संविधान भारत माता की अमर संतान है, वो देश जिसकी विविधता अधिक सशक्त, जिसकी एकता और अधिक अटल है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। ऐसी प्रेम की पूज्य भूमि को सादर नमन करते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमन करते हुए एवं समस्त निर्णायक मंडल को नमन करते हुए, मैं कनक चौहान उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से आपके समक्ष आज के विषय संविधान दिवस के 11 संकल्पों पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। महोदय, वर्तमान में परम आवश्यक है कि यदि हम अपने पावन संविधान की बात कर ही रहे हैं तो एक क्षण रुकें और सोचें कि क्या होता यदि संविधान न होता। शायद हम आज भी भटकती नौका में उफान ले रहे होते, या कह दें कि अन्य राष्ट्र हमारी हालत का अनुमान ले रहे होते। लेकिन यह हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हमारे भारत संप्रभुता और समाजवाद का एक राष्ट्र है। ये हमारा संविधान ही है जो हम भारतीयों को लोकतंत्र समाजवाद का हिस्सा बनाता है। महोदय, संप्रभुता, समाजवाद और वसुधैव कुटुंबकम का नारा आगे बढ़ाते हुए हम इस भारत को संवैधानिक मूल्यों को अपनाकर इतना आगे बढ़ा सकते हैं कि हर दिल, हर कर्म, हर गली में अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिभा पाटिल मिल सकती हैं और विश्व भर में ये परचम हम लहरा सकते हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बद अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी झांकी चमका हिंदुस्तान हमारा। जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारत। आगरा की कनक चौहान के पश्चात आगरा की ही सोना गहर। उसमें एक मिनट, जो ऊपर कंट्रोल जैसे माननीय विधायकों का काउंटडाउन शुरू होता है टाइम का, वैसे ही स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो ताकि उनको पता नहीं, इसमें दिखाई नहीं हो रहा। रिकॉर्डिंग में बड़ा कर दिया जैसे विधानसभा के दिन में होता है। अगर पॉसिबल हो तो बड़ा कर है पॉसिबल, हाँ, और बड़ा कर इसको। अब काउंटडाउन आपका चालू होगा तो आपको पता रहेगा कि वो है ऊपर टाइम, इधर वाले इधर देख सकते हैं, इधर वाले ऊपर यस प्लीज, इनका स्टार्ट करिए। आगरा की सोना गहर, कृपया प्रारंभ करें। Good afternoon, everyone. My heartfelt gratitude to respected dignitaries and fellow participants. Today, I'm going to speak on the topic 75 years of the Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. This journey can be viewed through two key aspects. How far have we come, and how far do we need to go? On to the first aspect, I see how our freedom struggle was fundamentally a fight for justice, equality, and rights. Dr. B.R. Ambedkar's movement against untouchability was advocating for justice for Harijans, while Mahatma Gandhi's Salt March demanded consumer rights for Indians. The culmination of all these struggles resulted in the Indian Constitution, which finally granted to every Indian the rights and the system of governance they truly deserve. Before independence, India was a nation deprived of even the most basic forms of sustenance. Our people were humiliated and insulted at every point under the shackles of colonialism. Our resources were exploited and we were treated as second-class citizens in our own land. But after independence, our achievements from the creation of land to the victories in wars, the smiling Buddha, the green and the white revolutions, have all stemmed from the principles enshrined in our constitution. Today, India is consulted at global decisions and nations seek to engage with our growing markets because they recognize our strength. The difference between then and now is, in simple terms, freedom. This freedom is the result of the sacrifices and intellect of our great Indian leaders and people embodied in the Constitution. Today, if we are able to assemble here peacefully and share our viewpoints, it's because of Article 19. Today, if we all have an equal chance to speak without any discrimination, it's because of Article 15 and 16. But my question is,
Is this enough? This question brings me to the second aspect of a constitution's journey. As we move towards becoming Vikasit Bharat by 2047, we need to take some steps and make some changes in our constitutional journey. The first step would be to move towards peaceful protests that do not harm the integrity of our nation. It deeply saddens me to see Indians fighting in the name of language, a tool of communication, not division. Let's prioritize teaching our people the language of peace, love and tolerance first before promoting any other language. Next, the directive principles of state policy must be made legally enforceable, and women who once had to fight for getting out of their homes now have to fight battles against sexual harassments of all sorts. The need is for stricter punishments to not only punish the culprits, but also deter all those who view women as objects. Lastly, ironically, now when we have the right to preserve our own culture, our Indian youth are readily embracing K-pop and hip-hop at the expense of our own cultural heritage. While it is fine to appreciate foreign culture, it becomes a matter of great concern and shame if we forget our own. I would like to conclude by saying that this constitution is a testament of our nation's resilience and determination, and as responsible citizens of India, it is our duty to uphold its values and contribute to building a just, inclusive and Vikasit Bharat. Jai Hind, Jai Maa Bharati. और अब आगरा के ही आर्यन देव पाथरे। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हो लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। भारत में रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत की बात सुनाता हूं। नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे इतिहास नहीं बना सकते, और आज वही इतिहास भारतीय संविधान की 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। तो चलिए उसके कर्तव्यों, प्रगति की यात्रा पर आपको लेकर चलता हूं। हाँ, ये वही संविधान है जो कहता है कि मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संस्कार दिए हैं, जीने के अधिकार दिए हैं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। अरे जरा सोचकर देखिए उस दौर को जब चारों ओर अन्याय का अंधेरा था, शोषण की तलवारें चमक रही थी, परंतु हमारे युवा वीरों ने हार नहीं मानी। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव जैसे युवा वीरों ने यही नारा दिया कि हमारा भारत हमारा होगा, और इसी संकल्प ने भारतीय संविधान की रचना की जो आज हमारे शक्ति का प्रतीक है। 1947 से विकसित भारत 2047 तक का सफर भी बिना भारतीय संविधान के असंभव है। अरे अंग्रेजी सत्ता की फूट डालो राज करो की नीति ने भारत को तोड़ने का प्रयास खूब जोर से किया, परंतु भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाया और सबको गले लगाया, क्योंकि भारत की भूमि ने देखा न्याय सदा इतिहासों में, भारत की भूमि ने देखा प्रेम गुजरती सांसों में। भारत आने वाले भारत का होकर रह जाता है और सबको गले लगा ले, ऐसी प्यारी भारत माता है, ऐसी प्यारी भारत माता है। और उस भारत माता के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का सफर आसान नहीं था। बंटवारे की त्रासदी, गरीबी की मार, जगह जगह पर चुनौतियां थी, पर संविधान ने कहा कि उठो, जगो और अपने हक के लिए लड़ो। उसने हमें तलवार और ढाल दी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की। महोदय, जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत को सोचता हूं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हृदय को खोल देते हैं कि आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। और स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। और बात यदि युवा वर्ग की करूं तो आज की सभा इस बात को चीख चीख के बता रही है कि युवा वर्ग इतिहास के लिए कितना जरूरी है और भविष्य के लिए भी। अंत में युवा साथियों का आह्वान करते हुए विदा लेना चाहूंगा कि हम वीर शिवा हम छत्रसाल,
हम वीर शिवा, हम छत्रसाल इस अमर दुर्ग के द्वार पर, हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल, हम रणभूमि पर शत्रुपाल, तलवार एक कर एक ढाल, हृदयों में आंदोलन विशाल, माथे पर शोभित तिलक, हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत माँ के नौनिहाल, हम भारत माँ के नौनिहाल। जय हिंद, जय भारत। ये प्रतियोगिता जारी रहेगी, लेकिन मंचासीन अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब मैं राज्य संपर्क अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर मंजू सिंह को आमंत्रित करता हूं। विकसित भारत युवा संसद के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इस ऊर्जा के साथ में दो शब्दों के साथ में सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जो तख्त बदलने निकले हैं, कुछ लोग जहां में ऐसे हैं जो तख्त बदलने निकले हैं, किंतु उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपके युवा यहाँ बैठे हैं जो वक्त बदलने निकले हैं, जो वक्त बदलने राज्य स्तरीय विकसित भारत का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित इस कार्यक्रम को नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा क्षेत्रीय निदेशालय एनएसएस तथा उच्च शिक्षा विभाग एनएसएस के द्वारा ये आयोजित किया गया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन और एक एक बात के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे माननीय सभापति जी श्रीमान मानवीय सिंह जी की जब हम लोग मिलने गए सर ने इतनी प्रसन्नता प्रकट की कि इस प्रकार का ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होगा। निश्चित तौर से ये विधानमंडल के लिए भी और विधानसभा परिषद और विधानसभा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सर, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी की पूरी भूमिका है। सर, जब हम लोगों ने आपके पास हम लोग ये पत्र लेकर आए नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना, आपने तुरंत कहा इतना अच्छा अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसमें जैसे ही इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है हम सब मिलकर निश्चित तौर से इस कार्यक्रम में 3 हमारे जो आपने अभी तो सिर्फ छोटी सी वानगी देखी है सर। एक बार हम लोग कानपुर विश्वविद्यालय की हमारी एक बच्ची पहले ही पार्लियामेंट में विजेता हो चुकी है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सभी जो युवा यहाँ आए, सर मैं अपनी बात को जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चे कह रहे थे कि मैडम सबसे बड़ा सौभाग्य होगा क्या सर के साथ हमें अपनी एक सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये युवा हैं, इनके संवाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे माननीय सभापति जी ने कहा, ये जो युवा संवाद है ये सिर्फ इस यहाँ सभागार में नहीं होगा, ये यहाँ से निकलेगा, भारतवर्ष तक जाएगा। इस बार महाकुंभ जो हुआ, सुनीता विलियम्स जी की जो फोटोग्राफ